नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। पारस हेल्थ गुरुग्राम ने 58 वर्षीय इराकी मरीज हादी मुस्तफा हमद को एक दुर्लभ डबल हार्ट प्रोसीजर के जरिए नया जीवन दिया है। मरीज मात्र 15% हार्ट फंक्शन, मल्टी ऑर्गन फेलियर और वेंटिलेटर सपोर्ट पर अस्पताल लाया गया था, जहां अन्य अस्पतालों ने हार्ट ट्रांसप्लांट को ही एकमात्र विकल्प बताया था। डॉक्टर अमित भूषण की टीम ने मित्राक्लिप तीर तकनीक से लीक हो रहे माइट्रल वॉल्व की मरम्मत की। प्रक्रिया के दौरान मरीज कई बार शॉक में गया और सीपीआर देना पड़ा, लेकिन समन्वित प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में लाई गई। सिर्फ 10 दिनों में मरीज की हालत नाटकीय रूप से सुधरी। ईएफ 15% से बढ़कर लगभग 40% हो गई। किडनी फंक्शन सामान्य हुआ और सांस की दिक्कत पूरी तरह खत्म हो गई। परिवार ने इसे चमत्कार जैसा सुधार बताया है। ये सफलता साबित करती है कि टी जैसी उन्नत तकनीकें गंभीर और उच्च जोखिम वाले कार्डियक मरीजों के लिए जीवनदायी विकल्प बन रही है और पारस हेल्थ गुरुग्राम को जटिल हार्ट केयर का अग्रणी केंद्र स्थापित करती है। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने बोला कि ये इस पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ना ओपन हार्ट सर्जरी हो पा रही है, ना कार्डियक ट्रांसप्लांट के लिए का हो पा रहा है, पेशेंट क्रैश कर रहा है। तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। तो इसलिए ये पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में ब्रीफ लिटरेचर में जो है हार्डली 2 या 3 केसेस हैं जिन्होंने 15% पे अटेम्प्ट किया है। एक 2 स्पेन में पेशेंट्स हैं जिन्होंने किया, एक तो उन्होंने किया था जो अटेम्प्ट किया गया था। बाकी अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े गिने चुने केसेस हैं जो इसमें अटेम्प्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि रीजन कॉमन है, रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट है। पेशेंट इतना खर्चा कर रहा है, सडनली कुछ हो जाता है और वो भी लैंग्वेज बैरियर है, कुछ हो जाता है, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्होंने भी ट्रस्ट किया हम पे, वो बात की और बताया। और जो अभी जो है यू कैन टेल योर एक्सपीरियंस राइट नाउ व्हाट वाज देयर शूटिंग। We came from Iraq and we went to the big hospitals and no one was ready to take any risk, and they all said we will do medical management and we put him on some medicine, but he was already having so much of fluids and breathless, he cannot walk, tiredness, he could not eat, and we just came to Sir and he explained all the risks or the benefits that cardiac arrest may happen, may kidney failure, liver failure, so he explained everything, and we went and we put our trust in God and in Sir. As we know, he's very experienced, so he did everything, and we went through so many complications, but he and his team, they put all thing together 24 hours. They were monitoring everything, they gave everything of, and they saved his life, and now he's doing really well, and he's going around, no fluids, no complications, no breathless. He's on his medication and his kidney is fine, his liver is fine, and he's very appreciative for your work, and we saw the best results anytime we come to see Sir. He's always putting patient first, and worldwide medical treatment is with Sir. Whatever is available all around the world, and he's doing in our center here, and we appreciate all your help, and he helped us financially, medically, everything. So thank you so much for everything, Sir. Usually, anesthesia also is very risky for such patients because we had to give him general anesthesia, and since all our anesthetic agents are like it lowers the heart functions further low, so it like reduces the heart functions. So like whatever we use for this patient, again the heart functions would have gone more like lower than what was his original heart functions. So, and the patient was epileptic. So, the choice of anesthesia drugs plus kidney functions was delayed, epilepsy was delayed. So, all the drugs, would be like more, metabolism of those drugs would not happen. So, the choice of anesthetic agents was very important, and yeah, this was a risky patients from anesthesia side also. सरल भाषा में एनेस्थीसिया बहुत रिस्की होता है। अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो तो जो दवाइयाँ देते हैं उनसे एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, तो वो सब चीज़ें। और फिर डर लगता है कि पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर ना आए, और बड़ी बार होता है कि हम लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं, वेंटिलेटर करके बाहर ना आए, तो वो डर लगता है।
बट लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया, दवाइयाँ प्रॉपर दी, उसके बाद जो एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होने दिया, एंड उसके बाद ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के बावजूद भी सारी टीम ने दिन रात लग के, मुझे पता है जिनकी 8-8 घंटे की शिफ्ट थी, लोग 18-18 घंटे बैठे इनके लिए कि भाई एटलीस्ट जो भी है इनको बाहर निकाल के ही जाएंगे। जब एक बार किडनी फेलियर डाउन हो गया तो सारी टीम का मोराल तीसरे दिन था कि सब दुखी हो गए कि इतने काम करने के बाद भी एक जब किडनी फेलियर सेट हो जाता है, डायलिसिस शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी वी डिड नॉट। हाँ, तो इसके बाद फिर कोई क्रिटिकल केयर में जो है जब पूरी टीम लगी रही, एनएससी जो कार्डिक कैथ टीम तो ऑपरेशन टीम तो हमारी साइड है, क्रिटिकल केयर आईसीयू टीम डॉक्टर संगमित्रा, डॉक्टर अमन, ये लोग लगे रहे रात दिन एक घंटे में कि भाई एटलीस्ट सर आउटपुट आ जाए एंड देन दिस इज व्हाट इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। पहले पेशेंट 2 कदम नहीं चल पाता था, अब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है आराम से। And the patient was managed in such a way that he required, like we thought that he would require dialysis, but उसे dialysis की भी जरूरत नहीं पड़ी, so that was very good for us and for the patient. जैसे बैंक का KYC होता है वैसे ये 4 नंबर, अपना पल्स, ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर और वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप 50 के ऊपर हो या रनिंग डिस्टेंस अगर आप 50 के नीचे हो, ये 4 नंबर आप कंट्रोल में रखेंगे या इनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करते रहेंगे। ये जो 256 टेस्ट लैब वाले करते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 नंबर से कैसे आपको पता चल जाएगा? पहले वॉकिंग डिस्टेंस या रनिंग डिस्टेंस, पहले मैं 2-3 किलोमीटर भाग लेता था, अब 500 मीटर पर मुझे सांस चढ़ रहा है, तो दैट शुड सेंड कि कुछ अलार्मिंग कुछ होने वाला है। ब्लड प्रेशर पहले ठीक था, सडनली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। शुगर पहले मेरी ठीक थी, अब शुगर मेरी एकदम बढ़ रही है, तो शुगर एक ऐसी दीमक है जो सारी चीज़ों को सुन कर देती है। साइलेंट अटैक, सडन कार्डियक डेथ शुगर वाले मरीज में 3 गुना ज़्यादा होता है। कल का ही बता रहा हूँ मैं, 45 ईयर ओल्ड एक मेरा पेशेंट था, बहुत दिन पहले जब मैं गुड़गांव आया था 2010-2012 में, एंथुजियास्टिकली उसने मुझे एक फ्लैट दिलवाया था। अब 10 साल बाद फ़ोन करता है कि सर मैं एक बार जब गाड़ी चला रहा था एकदम मुझे अंधेरा आया और मैं गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, अनईजीनेस हुई और मैंने गाड़ी डिवाइडर पे चला दी। यहाँ पे आके जब चेक किया तो देखा कि उसको जो है एक नस के अंदर 99% ब्लॉकेज था और वो स्मोकिंग करता। अब स्मोकिंग का ये है कि गुड़गांव में तो 50 सिगरेट तो सभी पी रहे हैं की वजह से, तो वो रिस्क फैक्टर नेगेट हो गया। तो इसलिए 4 नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, ये 4 नंबर कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अटैक आ गया है तो आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे नहीं 40 के नीचे होना चाहिए। Heart functioning of only 15%. Whenever you have a low heart functioning, 3 things happen. 1, it is equal to end stage cancer. His heart functioning was 15%. Anybody with a heart functioning less than 35%, 3 things happen. 1 is what the patient sees, severe shortness of breath. 1 is what the doctor sees, multi-organ failure. That means all organs, his kidneys, his lungs, his heart, his brain, everything fails. Third thing nobody sees is the risk of sudden cardiac death. This patient had come with a heart functioning of only 15%. Valve leakage was severe. There's the biggest valve of the body is called as mitral valve. He was refused open heart surgery in not 1 but at least 3 centers in the country. He was advised cardiac transplant when he would be stable. When he came to us, he was severely short of breath. Liver functions were deranged. Kidney functions were not functioning well. Suddenly the saturation dropped. And then suddenly we had to ventilate the patient. So we ventilated the patient, we did the procedure on a ventilator. This was done under TEE guidance, which is a 3D TEE guidance, which again is available in only 3 to 4 centers in the country. So this was done under 3D guidance, and then no scars, no stitches, no general anesthesia. It was done through the groin, and after through the leg vein it was done, and the clips were deployed. After the clips were deployed, heart functioning improved from 15 to 40%, but in between there were a lot of roadblocks. Patient had a sudden arrest on table. We had to do a cardiac massage, give him multiple shocks. Patient underwent dialysis also because the kidneys had gone down. After that, suddenly first clip did not work. We put the second clip. After the second clip was done, heart functioning improved to 40%, kidney function improved, urine output improved. Patient was out of the ventilator on day 3. He stayed with us for good 7 days after the procedure and 3 days before the procedure. So total duration of stay was 10 days. Earlier he was able to walk only for 2 to 3 steps. Now he walks for a long distance on a morning walk, 2 to 3 kilometers a day, as you had spoken to him recently. What's the reason is the kidney heart issues? So heart functioning is, heart is a central pump.
When the central pump of the heart is not functioning, every organ is receiving less blood flow. So when the heart is functioning, घर का पंप अगर आपका 15% काम कर रहा है, हर जगह सप्लाई 15%, दिमाग में 15% जाएगी, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी में 15% जाएगी, किडनी बैठ जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, किडनी बैठ जाएगी. सो एज अ रिजल्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर विल सेट इन. इसका कोई रीजन था, खास रीजन कोई? इसका रीज़न था कि जो इसका वाल्व का लीकेज बहुत ज़्यादा था, वाल्व खून आगे नहीं जा रहा था, तो फॉरवर्ड फ्लो नहीं आ रहा था, पीछे बैक टू द लंग्स आ रहा था, लंग्स में पानी भर रहा था, लंग्स में पानी भर रहा था तो एनी स्टैग्नेंट वाटर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो कंजेशन भी था, निमोनिया भी था, लेट भी नहीं पा रहे थे पेशेंट. जब लेट भी नहीं पा रहे थे उसको फिर उनको हमें वेंटिलेट करना पड़ा. हाँ ठीक है. ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार.